A very, very warm welcome each and everyone on Supercracks YouTube channel. And I'm starting this particular episode with a quote from Shah Rukh Khan. I think he is being looked up by each and everyone. There is one religion in the world, and that is hard work. A very warm welcome each and everyone on Supercracks YouTube channel. And today we have with us All India Rank 14 Anirudh Singhal and his proud mom over here. Congratulations to both of you, first of all. Parul ma'am, सबसे पहले नमस्ते मेरी तरफ से, and I'm quite sure कि it has been a fantastic week for you. कैसा feel कर रहे हो आप? Definitely, it's a fantastic week. आपका बच्चा जो सोचता है एक्चुअली जब इसने स्टार्ट किया था प्रिपरेशन 11th में तो ही मेड वन चेक जिसमें लिखा था इसने बोर्ड स्टॉप आईपी मैट इंदौर एंड एसआरसीसी अच्छा एंड एनीहाउ ही अचीव्ड एवरीथिंग बोर्ड्स में उसका थोड़ा सा सिली मिस्टेक की वजह से नंबर कम रहा तो सेकंड पोजीशन अदरवाइज एसआरसीसी का भी स्कोर आ गया एंड आईपी मैट तो आई एम रियली हैप्पी yeah. whatever he wanted for him he just He go has for just reached. And the good part it. is कि आपने एक चीज मैं स्टूडेंट्स को हमेशा कहता हूँ कि he started his preparation at the right time. So he joined Supergrad's top rankers when he was in standard 11th, that point of time. So I would like to understand what motivated you, Anirudh, to join Supergrad's top rankers, and that was in standard 11th. So one of my seniors told me about this institute that it is a very good institute and it will help you clear the exam. So I joined the Supergrads Institute. And how has been your journey? Because it has been 1.5 years now. बहुत बड़ा लंबा समय तुमने तय किया है. तुम हर किसी को बहुत पर्सनली जानते होगे. Everything was planned. Like ये जर्नी पूरी की पूरी तरीके से planned थी. And let me tell you, All India rank 15 के अंडर अगर आप तुम मेक कर रहे हो तो तुम्हारा स्कोर बहुत स्ट्रांग रहा होगा. शायद 2 नंबर का डिफरेंस रहा होगा ऑल इंडिया रैंक 1 से या 3 नंबर का, नॉट मोर देन दैट. सो I just wish to understand what all you went through in last 1.5 years. So it was a wonderful journey. The mentors helped me a lot. Even Anil sir gave me a lot of guidance. I was struggling a lot in MCQ section and he gave me a strategy that was very useful in that. And sir, even the classes were very useful. The classes taken by Akash sir of English were very helpful. So sir, in a nutshell, I would say that Supergrades helped me a lot in this exam. He's a big fan of Anil sir. He's a big fan of Anil sir. Big Yeah. fan. अनिल सर का मैं खुद भी फैन हूँ. मैं बहुत लोगों को बताया नहीं, मैं उनका खुद स्टूडेंट रहा हूँ. इसलिए या राइट. He's a big fan of Anil sir. That's so I know. Okay, Parul ma'am, over to you because you have also followed this particular journey. I remember we have had talks almost 1.5 years ago on the phone calls and everything. This has been a long journey. और इस बार हमने ये मोटो रखा था कि पेरेंट्स को हम इन्वॉल्व करेंगे क्योंकि एक फीलिंग आई मुझे when I went to a boot camp to Indore for interviews 1.5 हफ्ते पहले. मुझे एक फीलिंग आई उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कि पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट स्टूडेंट से ज्यादा है. बच्चा हो सकता है कि हट जाए जर्नी से, पेरेंट नहीं हटता. सो आई जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड हाउ हैज बीन हिज जर्नी फ्रॉम योर आईज ऐसा आल्सो. नहीं है कि आई थिंक कि बच्चे का इन्वॉल्वमेंट जो होता है जो बच्चे का मोटिवेशन होता है दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. आपका एज अ पेरेंट व्हाट यू कैन डू यू कैन कीप हिम और हर मोटिवेटेड राइट. आप मोटिवेशन कर सकते हैं. अरे मम्मा मेरा मॉक में स्कोर मतलब आई वाज लाइक समटाइम्स आई वाज हिटलर and sometimes I was a very good friend. It was Okay. like mock score इतना कम क्यों आया इससे ज्यादा मतलब I was never satisfied. मुझे पता है जब भी बोलते थे मम्मा इतना आया है अच्छा इससे बेटर करो इससे बेटर करो. फर्स्ट पोजीशन आई है तो क्या हुआ इनसे ही तो आई है ऑल ओवर इंडिया करना है ना. तो आई वाज कीप ऑन लाइक कभी कभी हिटलर एटीट्यूड कभी फ्रेंडली एटीट्यूड कि बच्चा बोल रहा है मम्मा मुझ पे नहीं हो रहा. अब बस योर प्रेजेंस शुड बी देयर. मुझे लगता है कि आप बच्चे के बराबर में बैठ के उसको एक सपोर्ट देते रहो. दैट ऑल इज नीडेड. बाकी सब बच्चे का होता है. हार्डवर्क बच्चे का होता है. आईक्यू बच्चे का होता है. व्हाटएवर एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन अ चाइल्ड. ऑलराइट. एंड आई रिमेम्बर मुझे एक इंसिडेंट सडनली क्लिक किया माइंड पे. मैं इंटरव्यू ले रहा था दिल्ली में बैठे हुए. अभी 1 हफ्ते पहले की बात होगी, 1.5 हफ्ते पहले की. हमारे दिल्ली में एक बूट कैंप चल रहा था. आपका टेक्स्ट आया जिसमें एक फोटोग्राफ था अनिरुद्ध का और सर मुझे बताओ कि कैसा दिख रहा है. वो शायद इंटरव्यू वाला दिन था उसका और Just a prior prior to that. हाँ. And that showcases कि कितना
माइंड में मदर के चल रहा है कि दिख कैसा रहा है मेरा बच्चा इंटरव्यू देने से पहले, एक बार वो भी एक मेंटर से पूछ लिया जाए. सो आई जस्ट वांटेड टू नो, मतलब इतना क्लोज रहे हैं आप इस प्रिपरेशन के साथ. अच्छा, लेट मी टेल टू द ऑडियंस हु आर लिसनिंग टू अस राइट नाउ, पारुल मैम इज रनिंग हर ओन एनजीओ. तो एक वर्किंग वुमेन होने के साथ साथ, एक मॉम होने के साथ साथ, एक बहुत स्ट्रांग मेंटर होना, ये रोल प्ले करना कितना डिफिकल्ट रहा होगा? वुड लाइक टू आस्क दिस. I'd say it is not difficult actually. एक तो women are actually manager, Multitaskers, like yeah, by birthday multitasker, हाँ. yeah. लेकिन एक बच्चे के लिए, like जब when it comes to your own child, it is effortless. आपको कोई एफर्ट नहीं डालना होता, ये ना आपको लगता है कि बस आपको करना है. तो मेरा प्रायोरिटी हमेशा रहा कि अनिरुद्ध के साथ मुझे रहना है. बस उसके बाद जो जो मतलब बाकी के सब एवरीथिंग आई कीप लाइक ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, अभी नहीं होगा तो 2 साल बाद हो जाएगा. अभी इसको हम इस प्रोजेक्ट को हम अभी नहीं करेंगे तो इसके जाने के बाद कर लेंगे. बात कर लें. पर मेरा प्रायोरिटी यही था कि मुझे अनिरुद्ध के साथ रहना है. बिकॉज ही लाइक आई टोल्ड यू दिस कि इसने ना अपना सारा फ्रेंड सर्कल वगैरह भी ऑलमोस्ट ही छोड़ दिया था. मतलब इसके अच्छा, इतने ओके. फ्रेंड्स रहे नहीं हाँ, 10th के बाद. तो आई वॉज वन ऑफ हिज फ्रेंड, लाइक 2-3 में से आई वॉज. तो अगर मैं भी नहीं होंगी तो फिर क्या. तो इस वॉज राइट. जस्ट कि साथ में बैठना था और मोटिवेट करना था. बाकी ऐसा कुछ मैंने किया ही नहीं है जो मैं बोलूं कि मैंने बहुत कुछ किया है. आई डिड नथिंग. राइट. और एवरी एफर्ट इसका ही है, मतलब इस सारा एवरी कुछ एफर्ट इसका इसी ही. का ही है. ठीक है रजत मैडम, तो आपको एफर्ट दे रही है पूरा, खुद नहीं ले रहे हैं, तो मैं आपसे पूछ लेता हूँ अब. और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि you already mentioned however कि MCQ was a difficulty in the beginning, and in fact Anil sir was a savior over there, but I would like to understand because आपकी स्ट्रेटजी अब उन लोगों को काम आने वाली है जो कि नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट ईयर इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन को लिखेंगे. सो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एक्चुअली गिव दिस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी टू देम नाउ. So, how did you deal with your mathematics section during this particular course? Yes, so for the first section, I did not have any strategy because there is a lot of time there. I just used to go through every question and start Acha. with the easiest हाँ, question right. from there. I faced a lot of difficulty in the MCQ section. In the initial mocks, I was not able to solve more than 4 to 5 questions in that section. Then I had a talk with Anil sir, and he told me that first of all, go through the basics of all the topics again and make sure that you know every topic very good. And then attempt 9 to 10 questions of the MCQ section. And after that, you can go to the LRDI section. So, sir, I made that strategy that if I'm able to solve the LRDI section or if I'm able to reach somewhere in the LRDI section in the first 5 minutes, I will continue to solve it. But if after 5 minutes I'm reaching nowhere, I'll leave it. And, sir, that is something you need to learn. You need to leave the questions. Even if you have spent 4 to 5 minutes on that question, you need to move on from that. And that is something I learned from mocks. So giving mocks is very essential. Okay. आई वॉन्ट टू इंसर्ट इन बिटवीन फॉर Yeah, दिस. yeah, एक please. तो सबसे ज्यादा जो मैंने अनिरुद्ध को बोला और सारे बच्चों को भी हेल्प करेगा कि जब आप अभी हुआ था लाइक जस्ट अ मंथ बिफोर और 15 days बिफोर कोई ऑल इंडिया मॉक आया था और इसने बहुत बुरी तरह, मतलब उसका रैंक बहुत खराब था, मार्क्स Acha. बहुत खराब थे Okay. क्योंकि एक एमसीक्यू सेक्शन में इसको नहीं आया. एंड उसको लगा कि अब उसने सारा खराब कर दिया. तो ये मैंने हमेशा इसको बोला कि बेटा जब भी आप टेस्ट दे रहे हैं, जब भी आप एग्जाम दे रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो आप हमेशा देखिए कि आप एक पोजीशन पे हैं. अगर आपसे सॉल्व नहीं हो रहा तो सबसे सॉल्व नहीं हो रहा. अगर वो Right. आपके लिए टफ है तो सबके लिए टफ है. Hmm. तो ये माइंड में रखिए. तो कोशिश करें कि अगर आपका ये सेक्शन इतना अच्छा नहीं हुआ है तो नेक्स्ट में आप अपना 100% दें, क्योंकि वो किसी का भी अच्छा नहीं होगा. अभी आपने देखा होगा एमसीक्यू सभी का कम गया. का खराब गया है. तो Right. तो ये इसने फाइनल में जब एग्जाम दिया तो इसने ये चीज को करा कि एमसीक्यू का इफेक्ट इसने इंग्लिश पे नहीं आने दिया, क्योंकि उसके इफ इंग्लिश इज फॉलोड बाय ना. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपका टफ है तो ये ना सोचें कि अब तो मैं गया. इट्स नॉट लाइक दैट. वो सबके लिए है. आपके Right. चांसेस हैं. यू आर स्टिल इन द रेस. दिस इज इम्पोर्टेंट. Fantastic calm and advice is being composed. given by my mother, because मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा नॉलेज वैसे मॉम्स को होता होगा कि यार पेपर पे क्या चीज किस तरीके से जा रहा है. सो स्ट्रेटजी being given by Anirudh's mother, I'm quite sure students are going to follow that as well. And you have been so close to him during preparations, that's quite visible and over here. That's also important. Ma'am, I would like to ask you now. मतलब ये बहुत लंबी प्रिपरेशन रही, 1.5 years to 2 years almost, and that too with Supergrad top rankers. What changes did you observe in Anirudh during this particular course of time?
सोशली कट हो गया, जस्ट लाइक बस अच्छा, इतना ही। और पॉजिटिव्स में ये तो थोड़ा मैं पॉजिटिव नहीं मानता सोशल कट होना, बट यस, नहीं, और भी सोशली काफी कट सारी इन पॉजिटिव। सेंस कि ही वाज, हाँ मतलब आई विल आल्सो नॉट रैंक इट इन, मतलब मैं भी सोशली कट हो गई थोड़ा, हम अच्छा अच्छा, दोनों ही सोशली कट हो गए। ओके ओके। तो हम लोग बस, मैं आई वाज डूइंग माय वर्क एंड आई वाज एट होम, बस ओके, यही किया मैंने। पॉजिटिव चेंजेस मैंने देखा, कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस, ओके। जैसे जैसे मॉक के स्कोर्स बढ़े, इसका कॉन्फिडेंस बढ़ा, राइट। कॉन्फिडेंस, ये बहुत सिली मिस्टेक्स करता है। अच्छा, इसने ओके। बहुत ज्यादा, यू विल नॉट बिलीव इट। इसने भी मतलब आई शुड टेल हर, सीयूटी में भी इसका मार्क्स और ज्यादा आना था, इसने ओएमआर में आंसर ही नहीं मार्क किया। ओह, ये ये भी हुआ इतना है। सिली मिस्टेक करता है। इसने ओके, बोर्ड्स में एक क्वेश्चन गलत पढ़ा और उसका गलत आंसर लिख दिया, जिसकी वजह से इसका सेकंड रैंक रह गया फर्स्ट से। तो आई वाज वेरी लाइक, ये सिली मिस्टेक्स ना कर दे, ये ना सिली कर दे, मिस्टेक ना कर दे। लेकिन ओके। आईपीएम में जो एग्जाम हुआ तो उसने बस एक ही सिली मिस्टेक करी है, तो आई एम ग्लैड फॉर इट कि उसने वो चेंज किया। वो चेंज किया। वरना ये बहुत, लाइक ही इज अ मास्टर ऑफ सिली मिस्टेक्स। तो आगे ये जाके चीज है सिली कि मिस्टेक्स आपको नहीं आता करनी है है। ना, हाँ, तो अब इसने मम्मी ये साथ भी इम्प्रूव नहीं किया। रहेंगी आने वाले 5 साल तक। ये तो है, तो बस एक सिली मिस्टेक्स है, हार्ड वर्किंग हुआ है, फोकस्ड हुआ है, तो यही सब चीजें हैं। And also, I would like to ask you, मैम, सुपरकैट्स टॉप रैंकर्स के टीचर्स को भी आपने बहुत क्लोजली देखा है, और इस जर्नी में आपका क्या ऑब्जर्वेशन था ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर 1.5 year जर्नी विद सुपरकैट्स नाउ इन पर्टिकुलर? एवरीथिंग इज हार्ड वर्किंग, मतलब बहुत अच्छे से। और मैंने देखा कि मतलब ये अनिरुद्ध ने कभी लाइव तो नहीं इतने देखे हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस ही देखी हैं अच्छा, हाँ। हमेशा ज्यादातर। हाँ, लेकिन मैंने औरों को, जैसे मैं साथ में बैठती थी तो मैं औरों का भी देखती थी, बच्चों का डिस्कशन अगर क्वेश्चंस आ रहे हैं तो बहुत अच्छे से उनको एंटरटेन किया जाता था। ये नहीं कि बैठ जाओ अभी बता देंगे, ऐसा नहीं होता था। एंड एक मुझे याद है, एक सर, वो हनुमान जी के भक्त, कौन है वो? राघवेंद्र सर। हाँ, राघवेंद्र आई सर। रियली लाइक वो इतना ना डांट डूट के बच्चों को रखते थे कि आप कर लो कुछ, आप कर लो कुछ, मतलब बहुत ओके ही पर्सनल टच देते थे, मतलब इट ओके, वाज गुड, इट वाज गुड। और इट वाज गुड, ऑलराइट। ठीक है, लेट्स मूव अहेड एंड लेट मी आस्क यू मोर क्वेश्चंस, were there some challenges in between? I mean, asking this to both of you. और कुछ challenges आए तो how did you overcome that? Because ये बहुत important होता है, जरूर बीच में कुछ ना कुछ, जैसे अभी थोड़ी देर पहले पारुल मैम भी बता रही थी कि एक ऑल इंडिया ओपन मॉक हुआ था, वहां पर डिफिकल्टी हुई थी। ऐसे कौन कौन से छोटे छोटे चैलेंजेस आपने फेस किए? So the major challenge was the mock scores. They were never consistent. नेवर कंसिस्टेंट, ओके। The first mock I gave, my score was 117, and I was really disheartened. After that, I gave it in 11th class. But then I understood the mock. It was the first mock I gave. I understood the pattern. Then I came to 150, 160. Then for a very long time, I was stuck on 190. Then again, my score started dipping. So, sir, it was a very up and down journey, and it just comes. It is very difficult to see the mock scores dipping. That is the very challenging position to remain motivated in that aspect. That is right. And how did Before you overcome it? I 15 mean, days of the exam, what was your motivation that point of time? so my motivation was a lot of videos that were available on YouTube. I used to watch, and that I need to go there only. All right. I used to watch the videos of campus, hostel room tour. I watched that ton of times, and that used to motivate me a lot. मुझे ये बोलता था ये कि मेरे को भी ना इंटरव्यू देना है, मुझे भी राहुल इंटरव्यू। सर इंटरव्यू लेंगे मेरा। इनफैक्ट मुझे एक ऐसे वाक्य याद आ रहा है, प्रशांत तिवारी ऑल इंडिया रैंक 11 थे, एंड व्हेन ही केम टू भोपाल, और उसने उसने तब भी ये चीज कही थी कि यार मेरे को है ना, ये था मेरा मोटिवेशन था कि आप मेरा इंटरव्यू लोगे जब अब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू मैम, एंड आई वुड लाइक टू आस्क यू दिस, आप दूसरे पेरेंट्स को, बिकॉज एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल मुझे लगता है, और मैं शायद हम लोग लेट हो गए पेरेंट्स की इस पर्टिकुलर चीज को आइडेंटिफाई करने में, बट रियली मैंने इस बार सोचा कि जितने टॉपर स्टॉक्स होंगे, जितना हो सके पेरेंट्स को हम इन्वॉल्व करें, क्योंकि वो टॉपर है स्टूडेंट के साथ साथ भी। तो आप बाकी पेरेंट्स को टॉपर बनने के लिए क्या एडवाइस देंगे नेक्स्ट ईयर? बस जो मैंने पहले कहा, moral support. मोरल A सपोर्ट। child just need a moral support. Sometimes you need to be a Hitler. Sometimes you need to be a very good friend. Sometimes you need to be a guide. You a guide, motivator, whatever. मतलब वही सारी चीजें जो होती हैं, और आप थोड़ा इन्वॉल्वमेंट दिखा, जैसे अनिरुद्ध इंग्लिश का था तो आई हेल्प इन वोकैबुलरी, मतलब जो जो हेल्प कर सकते हैं आप। कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करता था तो साथ में वी डिड दैट। तो मतलब थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट दिखा दीजिए तो बच्चे को लगेगा वो अकेला नहीं है प्रिपरेशन में, बस उसको लोनली फील नहीं होना चाहिए, दैट्स इट। अच्छा बेटा अनिरुद्ध, मुझे ना इंटरव्यू प्रिपरेशन जर्नी के बारे में भी बताओ, सुपर कैट्स ने कैसे हेल्प किया उस पॉइंट ऑफ टाइम में? हाउ डिड यू एक्चुअली डील विद इंटरव्यू पार्ट आल्सो?
So the mock interviews were really helpful. I was given some very valuable feedback. After giving 3 to 4 mock interviews, I was able to see that what I need to say so that the interview goes what in the direction that I want it to go. So that was really helpful, and that's what mocks interviews helped me to learn. So in the real interview, I only spoke those things. I made sure that the interview goes in my direction only. I do not take into a certain area that I do not know of. Right. And I remember your profile as well. मेरे पास आई थी वो प्रोफाइल पर्सनली एंड उसमें काफी सारी चीजें थी जो अपन ने चेंज भी करी थी. तो उसी ग्राउंड पे क्या फिर इंटरव्यू बाद में जो चेंज प्रोफाइल थी उसी ग्राउंड पे. No, so they did not see my profile, neither they asked me for an बट intro, ये पता है no क्या HR होता है, आई टेल यू questions. व्हाट अनिरुद्ध एक्चुअली जितने भी स्टूडेंट्स सुन रहे हैं, अच्छा वो ये क्वेश्चन निकल आया है कहीं से. एंड एक क्वेश्चन हमसे पूछा जाता था कि आई एम इंदौर में एचआर क्वेश्चंस कम क्यों पूछे जा रहे हैं, या फिर किसी किसी स्टूडेंट से ज्यादा क्यों पूछे जा रहे हैं. मतलब एक ये दो चीजें हमारे सामने आई. आई आई टेल यू फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डायस. एक प्रोफाइल ऑलरेडी उनके पास गई हुई है and by rule they have to read that particular profile before they actually take the interview. There are some there are some implicit marks to that particular profile explicitly जो बताए नहीं जाते. तो अगर वो एचआर क्वेश्चंस नहीं भी पूछेंगे उस पॉइंट ऑफ टाइम पर, दैट गोज वेरी वेरी गुड. लेकिन क्या किसी किसी का प्रोफाइल थोड़ा सा डाइसी होता है, ट्रिकी होता है, बहुत अच्छा भी होता है, तीनों चीजें हो सकती है, राइट. तो और तो उनसे एचआर क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं. तो समझना कि वो प्रोफाइल सही लिखा है उसने या गलत लिखा है. सो ये वाली चीज होती है. तो हम लोग को लगता है ऐसा है कि यार क्वेश्चंस नहीं पूछे गए या उन्होंने नहीं पढ़ा है, बट कुछ इंटरव्यूअर क्या करते हैं, आइडली बाद में पढ़ लेंगे. लाइक आपका इंटरव्यू हो गया फिर देख लेते हैं क्या प्रोफाइल है. लेकिन इसलिए वो हो सकता है आप लोग को ऐसा फील आए कि यार उन्होंने मेरा प्रोफाइल नहीं पढ़ा, बट ऐसा नहीं होता कभी भी. ठीक है. तो मुझे बताया था कि one of the interviewer was continuously looking in to his laptop और उठ के नजर उठा के भी नहीं देखा 5 minutes बाद. मैंने कहा बेटा ये भी एक ट्रिक होता होगा और शायद आपका प्रोफाइल वहां पे सीवी आपका वो पढ़ रहे हो उस दो वक्त रीड चीजें, वो करके. आपके प्रोफाइल पढ़ रहे होंगे, दूसरा आपको बहुत साइलेंटली आपकी बॉडी लैंग्वेज पे जज कर रहे हैं. आपकी वाइब्रेशंस बहुत बोलती हैं व्हेन यू आर इन ऑफलाइन इंटरव्यू. The आप हमें first नहीं हो पढ़. panelist took my interview for 10 minutes, and after that he handed over to the second panelist. And then after that he did not even look at me. He was busy in his laptop. राइट. I looked at him thrice or 4 times at least. Ki, sir, dekh lo, main bhi idhar hu, but he gave no attention to me. And he was like busy in his laptop reading something. I think he must be reading my profile or something like that. नहीं, इट्स अ प्रेशर बिल्डिंग टेक्निक बेटा, बहुत सिंपल तरीका है. Uh, इग्नोर मारो सामने वाले को. yes, sir, वो I just देखते हैं kept कि a वो इग्नोर मार smile. रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं तेरा अटेंशन हट जाए उनसे. ठीक है. I just kept a smile throughout the interview, and that's what helped me. Right. All right. Last, but the very fantastic question. What advice would you give to all the students who wish to crack IPM Indore next year or next to next year? So my only advice would be not to neglect verbal ability. I did that mistake. I Or- focused a lot on verbal ability during my initial preparation. Then I left it for a lot of months, I guess. And then later on, I was facing a lot of difficulty. My score in maths was okay in the mocks, but my score in verbal ability was not increasing. I gave a lot of sectional mocks that helped me a lot. So, sir, I can tell you what was my strategy for verbal ability. So, I was not at all good at vocab. So, first of all, I started by the Supergrads booklet, high frequency words that were given the vocabulary book. I did those, and along with that, I did some basic level or moderate level reading comprehensions. Mhm. After I was able to learn all the high frequency words mentioned in the booklet, I decided to read Hindu editorial, and along with that, I solved comprehensions. After it took me around a month or so to get acquainted with the Hindu editorial. After that, I decided that I'll start solving CAT comprehension. So I ordered Arun Sharma, ठीक है. and that was really helpful. And so one thing I would like to add in this is to all the students who are aiming for this exam, that solve only those reading comprehensions which have an explanation. If you are just solving and if your answer is wrong and you do not know why it is wrong, then it is no point of solving ये those प्रॉब्लम हमारे comprehensions. सामने आई ऑलरेडी अनिरुद्ध. तो हमने अभी इस साल से एक नई चीज चालू करी है. इनफैक्ट ऑल द लिसनर्स, ये देखो, एक सब टॉपर आपसे ये प्रॉब्लम शेयर कर रहा है. तो हमने अभी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सना मैम का एक यूट्यूब पे एडिटोरियल, हिंदू एडिटोरियल के ऊपर एक लाइव सेशन रखा है जो रोज 3 बजे जा रहा है. एंड शी इज एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरी पैसेज. ताकि देखो होता क्या है, बुक्स में यही प्रॉब्लम होती है कि एक्सप्लेनेशन दिया भी होगा ना तो प्रॉब्लम है, कोई समझाने वाला नहीं है.
सो वो गैप ब्रिज कर रही है सना मैम यहाँ पर। इनफैक्ट हिंदू के साथ साथ हमने वृंदा मैम ने मुझे ये सजेस्ट किया कि जब हम लोग एक मीटिंग में बैठे थे तीनों में, और वृंदा मैम और सना मैम इस पे, देन शी ऑल्सो, वृंदा मैम की तरफ से सजेशन आ रहा था कि हिंदू के साथ साथ आई वुड सजेस्ट यू राहुल कि इस पे टेलीग्राफ के जो पैसेजेस एक्चुअली आते हैं, जो इकोनॉमिक टाइम्स के पैसेजेस आते हैं, जो न्यूयॉर्क टाइम के पैसेजेस आते हैं, उसको भी लेके जाए। मैं बोला हाँ, इन लेटर वर्जन वील सी हाउ स्टूडेंट्स आर रिस्पॉन्डिंग टू इट, we'll we'll take those passages also. So Supercats YouTube channel is going to help. कॉम्प्रिहेंशन में एक चीज और जो मैंने अनिरुद्ध को भी बताया था वो ये है कि जो शायद औरों को हेल्प, जब कॉम्प्रिहेंशन रीड कर रहे हैं ना तो अपना फोकस सिर्फ उस पे रखिए जो वहां पे लिखा हुआ है। ये Right. मत सोचिए कि अच्छा ये भी आंसर हो सकता है, हाँ, ये भी हो सकता है, ये अपना इम्प्लाई मत करिए, जो दिया है आंसर तो वही होगा, वही होगा। राइट राइट, आई वही थिंक दिस इज होगा। फैंटास्टिक सजेशन आल्सो। एक स्पेसिफिक स्पेशल क्वेश्चन पारुल मैम So I आपके would लिए like है। to add one अच्छा, more या thing in प्लीज से, that. प्लीज से। Sir, in during my initial, even during the last stages of my preparation, the mistake I used to do that in order to save time, I used to read the reading comprehension very fast, and the mistake I did that I needed to read that again because I could not understand the passage in one go. So even I know that I'm not able to understand the passage, I will go on अच्छा, and reach the end. Then after going to the questions, I'll realize that I did not understand the passage. एनीथिंग। I'll read that again. So I changed the strategy at my last moment that I will devote more time to my reading comprehensions, but I will make sure that I will understand it in one go. So that's what really helped me in the real exam as well. I gave around 10 to 15 minutes to my reading comprehensions. I gave full attention to that. I would like, if I'm not understanding of a line, I'll read that twice. I will not go ahead of that. And it's also, better. I would advise to read the questions Yes, before that was right. solving the comprehension. Read That the also helps a question lot. before solving the comprehension. This फैंटास्टिक is very एडवाइस, या important. फैंटास्टिक This is एडवाइस। very या पारुल मैम, आखिरी क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा स्पेसिफिकली, क्योंकि मेरी फोन पे आपसे जब बातचीत हो रही थी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपने एक चीज कही थी सहारनपुर के अराउंड, और मैं ये सिर्फ सहारनपुर को मैसेज नहीं देना चाहता हूँ, मैं ये हर छोटे शहर को देना चाहता हूँ। सो लेट मी टेल टू स्टूडेंट्स हु आर लिसनिंग टू अस राइट नाउ दैट बोथ ऑफ देम हैव जॉइंड फ्रॉम सहारनपुर, दैट इज ऑलमोस्ट नियर टू देहरादून, 1 घंटे की डिस्टेंस पर है वहां से। तो मैम आप चाह रहे थे कि वहां पर अभी आईवीएम की अवेयरनेस हो, तो सडनली वो बात आप प्लीज यहाँ पे भी रखिए कि एग्जैक्टली मन में क्या था। डेफिनेटली। एक्चुअली जब बच्चा कॉमर्स लेता है तो उसको लगता है कि अब हमें क्या करना है, या तो वो पीसीएम लेता है या वो नीट करता है या फिर वो सोचता है कि अब मुझे क्या करना है। तो मुझे भी नहीं पता था, अनिरुद्ध को भी नहीं पता था कि ऐसा भी कोई ऑप्शन होता है। डेफिनेटली इट इज अ टफ ऑप्शन, लेकिन अगर आप स्टार्टिंग से प्रिपरेशन करेंगे, अगर आपको अवेयरनेस है, आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज प्रॉपर गाइडेंस। जैसे हमने यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था और वहां पर 5 अनिरुद्ध को कराया था, वहां पे 4-5 मंथ्स इट वॉज अ वेस्ट, ओके। वेस्ट हो गया कंप्लीटली। फिर आप लोगों का पता चला, फिर तो इट्स प्रॉपर गाइडेंस इज नीडेड। राइट। जब तक आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलेगी आप, और अवेयरनेस तो यही है कि आप इंदौर जाएंगे, 5 इयर्स का प्रोग्राम है, आई एम इंदौर इज अ बिग बिग ब्रांड। अगर 3 इयर्स बाद आप कैट दे सकते हैं, एबीसी में मूव कर सकते हैं। अगर आप किसी और कॉलेज के बाद कैट देंगे, अगर आपका अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा होता है, गुड, नहीं कहीं भी नहीं होता है, देन आईपी मेट इज अ वेरी गुड ऑप्शन, क्योंकि वहां से आप आई एम इंदौर से तो एमबीए करके हमेशा निकलेंगे। एंड आई थिंक पैकेजेस आर ऑल्सो वेरी गुड। Fantastic. Yeah. Certainly, in fact, very right points being made, and आज student audiences में awareness नहीं है, लेकिन देखिए अब parents कितना aware हैं, guys, and that's quite visible from Parul ma'am's talks, and Anirudh making. You want to say something? Yeah, please. Sir, I would like to add one more thing that Yeah. every aspirant should go through the PYQs that are very necessary Yes. because you will get to know what the exam really wants. If you are Essence of preparing exam. a topic but you do not know what type of questions are they asking, like in arithmetic, they usually ask simple questions. They do not go much deep in that. So there is no need to go very much deep into that. Solve Arun Sharma for that. Mhm. So I did Arun Sharma, but I only did important topics like permutation, combination, probability, number system, higher maths, algebra. All those topics I did. So I would advise every aspirant to go through the PYQs, especially for verbal ability. There is a fixed pattern. Words often confused, idioms, phrases, para completion, para jumbles. There is no change in pattern there. Answer in words often confused, they are very limited. I Right. would advise everyone to go through Google, learn every homonym, homophone you can, because they are limited, and 5 of them are going to come in the exam, so you must not lose marks in them. Idioms and phrases are unlimited. I learned thousands of idioms, but still I got idioms that I did not learn. अच्छा. Yes, I needed to. I think he has learned around 3,000 or 4,000 idioms. Oh,
जितना मुझे पता है, क्योंकि मैंने भी सुने हैं कुछ। Even that were not enough. So there is no end to idioms and phrases. I would definitely say that. But words often confuse is something that are limited, and you must do Unlimited. that thoroughly. All right. You should not neglect that. Any book, Enki Agarwal, Renan Martin, from wherever you are getting, just learn those. I think some fabulous points being made, and मुझे ना एक चीज लग रही है कि you should personally come हमारे जब भी तुम इंदौर आओगे उसके एक दिन पहले या कुछ we'll conduct some session from your side for the students, ताकि तुम्हारा ट्रेवल भी प्रॉब्लमेटिक ना हो वहां पर, चाहे वो इंदौर में हो या भोपाल में हो, कहीं पे भी looking into your comfort as well. I'm announcing this from this particular dais because I'm finding that here the strategies being told by Anirudh are going to be really really helpful to the next set of students. एंड मैं हम लोग ये अगर ऑफलाइन करवा पाए तो बहुत अच्छा रहेगा. आई रिक्वेस्ट इंदौर सेंटर इफ दे आर लिसनिंग टू राइट अस राइट नाउ कि ये अपॉर्चुनिटी को वो ले सकते हैं, या फिर हम भोपाल सेंटर अगर सुन रहा है तो इस अपॉर्चुनिटी को हम उनको भी दे सकते हैं. सर्टनली अनिरुद्ध कैन टर्न अप टू बोथ द प्लेसेस बिकॉज ही विल बी ट्रैवलिंग टू इंदौर I'm सर्टनली इन listening to what you are saying, making me feel so proud. ऑल I'm राइट. so proud of my son. All right. Thank you, ma'am. It was a fantastic, fantastic conversation. Will be seen and remembered for long. Thank you, ma'am. And thank you, Anirudh, for making me. Thank you, sir. Namaskar. All right. Thank you, Thank you. sir. Thank you.